Okay, so good morning to all of you. Uh, so we had started doing this thing. We had started a new topic on fluorescence. Sorry, the luminescence. So what I told you in the last class, luminescence is the most basic term, and all other things um, just derived from it. Whatever fluorescence, something. So most basic term is luminescence. That's what we learned. So luminescence is the basic term. Emission of light. Any emission of light is when so happens. Can the emission of light when it happens while the electron from the excited state goes to the returns back. It is a process of relaxation, relaxing back. Like कि आप जैसे excited you go do some work and then relax. Similarly, the electron is already in the excited state E2, and then um, sorry, and then it will try to relax back. And there will be emission of light. So this emission of light in this kind of process, when E2 to E1, it is coming back and emitting. So this is your luminescence, right? Very basic thing. Now, how this electron initially was present at E2 level, depending on that, मतलब वो कैसे E2 पे पहुंचा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा कैसे, उसकी बेसिस पे फिर आपका नामकरण होता है और नाम अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है. So that is something that we learned in this slide, which was that was here. So that way, then we start classifying based on how that electron reached that E2 level. ठीक है, क्या आपने फोटोन से एक्साइट किया, हीट करके एक्साइट किया, कैसे वो E2 लेवल में पहुंचा. ठीक है. सो डिपेंडिंग जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये रह गया मेरा एरर, ये इसको एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट वापस आने के प्रोसेस में जो लाइट एमिट होगा उसको हम लिख सकते हैं नंबर वन. ठीक है. एक्साइटेड स्टेट में वो पहुंचा कैसे उसको जानने की कोशिश करते हैं, मतलब उसकी बेसिस पे हम उसमें प्रीफिक्स ऐड करते हैं. फोटो मतलब फोटॉन, there was by absorbing a photon it has reached the excited state, so that will be photoluminescence. Then if you pass an electric current and it starts glowing, something starts glowing, emitting light, then it is electroluminescence. So basically that means that you are exciting by passing the electric current. It is the electrical energy which is exciting the molecule to the next energy level, and from there it is coming back. So that how that excited state was reached, thermoluminescence, हीट करके आप अगर करते हैं thermoluminescence होता है. जैसे कि फ्लेम में आप सोडियम को हीट करते हैं, मेटल को, और फ्लेम टेस्ट जब करते हैं तो उसमें येलोइश ग्लो आता है बहुत. तो सोडियम एटम एक्साइट हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा है, और एक्साइट होने के बाद जब रिलैक्स बैक करता है तो इट एमिट्स लाइट. सो दैट इज एग्जांपल ऑफ दैट. इस तरह से you also have triboluminescence. It is by application of pressure. So this is cathodoluminescence. It is by electron beam. Excitation is done by bombarding the sample with electron beam. Okay, electron beam create किया जा सकता है सब. So you have then you also have chemiluminescence. So one of the products which is formed if you have a reaction A plus B gives C, the product C which is formed is in excited state, then it will be some. So ये कल भी हमने बताया था. So ये बहुत सिंपल सा स्कीम है कि आप इसको देखिए, C बना, C जो बना है ये एक्साइटेड स्टेट में है. सो जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा इट विल एमिट लाइट एंड दिस विल बी केमिकल. अब यही प्रोसेस अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रहा होगा तो सिंपल है, उसको बायोलॉजिकल कहते हैं, जो जुगनू में होता है, ल्यूसिफरेज एंजाइम.
का उसमें काफ़ी रोल है। इस तरह के और भी कुछ एंजाइम्स और कुछ और सिस्टम्स में होते हैं, उसको बायोलिमिक्स, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड so and then I told you that that we are going to focus in this particular semester only on the photoluminescence. That is our prime motive. पहले हम फोटोल्यूमिनेसेंस को तो अच्छे से समझने की कोशिश करें। सो फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, ये दोनों ही फॉर्म ऑफ एमिशन ऑफ लाइट है, जिसमें कि आप फोटोन से ही एक्साइटेशन करते हैं, बट जो वापस आने का रास्ता है वो अलग अलग है, बस उस पर डिपेंड कर ये फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस है। एंड बिकॉज इट इन्वॉल्व स्पिन स्टेट्स, चाहे पहले के फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस डिपेंड करता है वो सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन है या फिर सिंगलेट ट्रिपलेट टू सिंगलेट, वो एस नॉट, हाँ ग्राउंड स्टेट में जो आ रहा है सिंगलेट से वापस आ रहा है S1। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्साइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पिन, ठीक है। और उसी सो ऑब्वियसली इट इज इन द फर्स्ट केस S1 to S0 the conservation spin angular momentum is conserved, so that is a, allowed process. It is whether the second one is forbidden. You do not follow the conservation of laws, so it will be forbidden. And therefore phosphorescence is even rare form of emission of light that you will observe. Not there are very few out of absorption is a very basic phenomena. आप जो कलर देख रहे हैं, एनी विजुअल थिंग दैट यू सी, सब जगह लाइट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन हो रहा है। So that is, if something is it looks white, that means it absorbs in the white का मतलब no, white का मतलब with your violet indigo blue green yellow orange से कुछ भी absorb नहीं हुआ है। जो आप with your जानते हैं वो कहीं नीली साइड में absorb कर रहा होगा, ठीक है। यूजुअली ऐसा ही होता है। अगर कुछ भी एब्जॉर्ब होगा तो हल्का सा कलर तो आएगा, वॉयलेट एब्जॉर्ब होगा, रेड एब्जॉर्ब होगा, कोई बाकी जो बच जाएगा वो आपको अपीयरेंस ऑफ कलर देगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं एब्जॉर्ब हुआ तो फिर वो वाइट है, ठीक है। अगर कोई चीज हाँ, अगर कोई सो इफ समथिंग इज लुकिंग येलो दैट मींस इट इज, हाँ येलो आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, येलो कंपोनेंट ऑफ द व्हाइट लाइट, समथिंग लुक्स ब्लू देन इट मींस रेड वाला साइड में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ब्लू साइड वाला जो डोमिनेंट फॉर्म है वो आपकी आंखों तक पहुंचता है। सो वेदर इट्स ट्रांसमिटेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, सो ग्लास के आर पार क्या डिस्टेंस के आर पार दैट इज ट्रांसमिटेड लाइट, यू विजुअलाइज इट थ्रू द ट्रांसमिटेड लाइट में उधर से कुछ मतलब सैंपल पे लाइट पड़ा और कुछ आपकी आंखों में गया, ठीक है। तो जो व्हाइट लाइट चला और बीच में एब्जॉर्ब हो गया वो तो आपकी आंखों तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो बच गया दैट इज गिविंग रीचिंग योर आईज एंड गिविंग यू अपीयरेंस ऑफ कलर। उसी तरह से अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वी आर लुकिंग एट समथिंग, लाइट पड़ रही है रिफ्लेक्ट करके आ रही है, तो लाइट उस पर इंसिडेंट थी एंड उस व्हाइट लाइन वाज इंसिडेंट एंड सपोज ब्लू इज एब्जॉर्ब, तो ब्लू वाला, अब आपको ये भी पता है कि मॉलिक्यूल्स में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लाइन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, दैट इज अ बैंड, सो वो स्प्रेड होगा कुछ उसका, डिपेंडिंग ऑन कितना स्प्रेड है, कितना वो ब्लू का कंपोनेंट इधर गिरेगा, थोड़ा सा ग्रीन तक ऐसे टेल जाएगा उसका ओवरऑल कलर जो बाकी बच गया, जो डोमिनेंस होगा बाकी रेड तक वाले रेंज में, तो लगभग रेड वाला कोई ना कोई शेड आपको दिखेगा, रेड के जैसा कुछ ऑरेंज, रेड और ऑरेंज के बीच में। तो ऐसे ही होता है कि समथिंग विच इज एब्जॉर्ब, वो तो लौट के वापस आपके आंखों में पहुंचा नहीं, जो टकरा के फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आ रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, रीच योर आई एंड गिव यू परसेप्शन ऑफ कलर। सो कौन सा कंपोनेंट आपकी आंखों तक पहुंचता है आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द सबस्ट्रेट, ठीक है, चाहे वो रिफ्लेक्शन मोड में हो या ट्रांसमिशन मोड में, how it is reaching you, that is beyond after something is a part is absorbed, another set of the
visible spectrum is not absorbed and reaching your eye, that is giving you the perception of color. यही मेन चीज है. लेकिन फ्लोरोसेंस में जब आप यूवी लैम्प में यहाँ पे कुछ सैंपल रखते हैं, दैट इज डायरेक्ट. जो कलर पूरा डार्क है, यूवी तो हम देख नहीं सकते, और उसमें अगर वो इट इज ऑलरेडी गेटिंग एक्साइटेड बाय यूवी लाइट विच वी कांट सी, and it is emits say green 500 nanometers something green light, so directly green light will reach your eye and give you perception of it. That is fluorescent color. ठीक है. फ्लोरोसेंट कलर में वो कॉम्प्लीमेंटरिटी वाला चीज नहीं है. ठीक है. यूवी लाइट में जो आप देख रहे हैं वही कलर वहां से आ रहा है, आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, जो कि सैंपल एमिट कर रहा है. ठीक है. लेकिन जो डेली लाइफ में आप कलर्स देख रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन है. ये सब जो हम कलर्स देखते हैं इन जनरल, ये एब्जॉर्प्शन है, ये एमिशन नहीं है. एमिशन इज रेयर. सब चीजें एब्जॉर्प्शन सब में होता है. मतलब अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो जरूर एक्साइट भी हो रहा होगा, मॉलिक्यूल्स विल बी एक्साइटेड टू सम एक्सटेंट, एंड देन दे आर कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट. नेचुरल टेंडेंसी होगी. लेकिन सब दे आर नॉट एवरीथिंग इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ एमिटिंग लाइट. जो वापस आने का फॉर्मूला है वो सब कुछ लाइट एमिट नहीं कर रहा है. तो फ्लोरोसेंट होना ही कम सैंपल्स में पाया जाता है. फॉस्फोरेसेंस तो और डिफिकल्ट होगा करवाना, क्योंकि उसमें आपको फॉरबिडन ट्रांजिशन, सम हेल्प फ्रॉम सम अदर थिंग, कहीं ना कहीं से उसका स्पिन कंजर्व होना है ओवरऑल सिस्टम का, तभी जाके वो होगा. इट विल टेक हेल्प फ्रॉम सम अदर मॉलिक्यूल, समथिंग नियर बाई चीज़ों से वो करेगा. जब तक वो नहीं होगा तब तक होगा ही नहीं ट्रांजिशन. सो दैट इज मेन थिंग फॉस्फोरेसेंस, एंड इट इज रिलेटेड टू द स्पिन स्टेट जो बताया था आपको. सो एक्साइटेशंस. सो इन अ वेरी सिंपल टर्म अगर आपको दिखाना है तो ये वाला जो है, ओके इसमें जूम करेंगे गड़बड़ हो जाएगा. सो ये जो आप देख रहे हैं, सो दिस इज स्टेट 1, सिंगलेट स्टेट, ग्राउंड स्टेट, और फिर आपने एक्साइट किया, स्पिन अनपेयर करके वो ऊपर वाले स्टेट में गया है. तो दैट इज, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को हम एक लाइन से दिखाते हैं. मतलब वेरी सिंपल केस में हम ऐसे ही दिखाते हैं. जब उसकी उसी को उस एक लाइन को जब हमें इलेबोरेट करना होता है वो पूरा पोटेंशियल वेल बना देते हैं. ये भी अब आप समझ रहे हो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इन अ वेरी सिंपल वे, कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो दैट इज इलेक्ट्रॉन. इट वाज इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट, इट वाज पेयर्ड, एनर्जी दी गई, और ये स्पिन जैसा था वैसा ही स्पिन उसका एक्साइटेड स्टेट में. सो दैट इज सिंगलेट. then there is another case when you have excited and somehow it इसका spin change कर दिया, that is triplet state. ठीक है. so this is what characterizes the two things. ये वाला यहाँ पे है जब, और फ्लोरोसेंस में ये वाला होगा. so इस तरह से आपको, so ये पार्ट आपका क्लियर है. और ये जो डायग्राम जिससे हम इसको इलेबोरेटली एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज ज़ेबुलोंस्की डायग्राम. तो इसका बहुत सारा वेरिएशन मतलब अब डायग्राम में आ चुका है. मतलब सो बेसिकली आइडियली द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट इज थ्रू द पोटेंशियल वेव्स हमेशा. ठीक है. आप यू कन्वे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितना उसमें समझ रहे हैं सब कुछ. ठीक है. नहीं तो but most of the books or most of the websites you will find this kind of diagram where उस पोटेंशियल वेल को नहीं दिखाया गया है पूरा, लेकिन उसमें जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में उसको दिखाया जाता है. इससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है कि आप अच्छे से, क्योंकि कई बार उतना सारा ड्रॉ करने में मतलब कंजेस्टेड लगेगा, एंड यू वांट टू कन्वे द बेसिक आइडिया. तो ऐसा भी अगर आप ड्रॉ करके दिखाते हैं, यू आर क्लियर इन योरसेल्फ दैट ये सारा एक, दिस इज वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट. ठीक है. ये पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, और ये जो लाइंस है ये उसकी वाइब्रेशनल लेवल्स को डिनोट कर रहा है. ये, और ये जो बॉटम में ये पूरा ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, इसकी वाइब्रेशनल लेवल्स यहाँ पे लिखा है. ठीक है ना. तो इस तरह से आप सब कुछ आप डिफाइन करके बता सकते हैं. ओके. सो यू हैव, सो यही मैंने कहा कि ये कैसे किया. सो वही मैं बताने के लिए ये स्लाइड हमने क्यों डाला. ये जो आप देख रहे हैं ये कहाँ से आया, कैसे आया, यहाँ से आया. जो राइट हैंड साइड में आपका है वो ओरिजिनल है.
इससे पैरेलली हमने एक्सट्रैक्ट किया है कि ठीक है, यहाँ पे मुझे इतनी सारी लाइंस जो ड्रॉ करनी है, रेड ब्लू फ्लोरेसेंस बताना है, एब्जॉर्प्शन बताना है, ये इसमें मैं उतना कर नहीं पाऊंगा क्योंकि इट विल बी कंजेस्टेड। सो आई टेक आउट दिस पोर्शन, ये जो इसका ऑरेंज वाले का ये अलग कर लिया हमने, इसका ब्लू वाले का ये जो लाइंस दिख रही थी इसको यहाँ कर लिया, और इस तरह से करते करते आपने पूरा उसको, हाँ। और ये देखिए इसीलिए ये सब पैरेलल्स में एकदम पैरेलल पैरेलल दिखाया गया है, ये ग्रीन वाला यहाँ पे दिखाया गया। सो इस तरह से करने के बाद फिर मैं सारी लाइंस उसकी ड्रॉ करूँगा। बेस्ट थिंग इज दैट। ओके, सो ठीक है, ये डी वाला मैं बाद में आपको बताऊंगा, ये प्री डिसोसिएशन, ये अलग से एक क्लास लेना पड़ेगा। अभी स्लाइड में इसका डिटेल्स मैंने डाला नहीं है, बट हाँ मेरे दिमाग में है वो अभी। लेकिन अभी जो आपको प्राइमरी जो है, ये तीन, ब्लू वाला पोटेंशियल वेल, ग्रीन वाला पोटेंशियल वेल, ऑरेंज वाला पोटेंशियल वेल, ये तीन पोटेंशियल वेल इंपॉर्टेंट है। इसी पोटेंशियल वेल की जो ये जो वाइब्रेशनल लाइंस है, इसमें इसमें आपको क्लैरिटी इस चीज इस तरह से मिल रही है कि आप क्लियरली देख रहे हैं कि एस का कुछ वाइब्रेशनल लेवल्स टी के वाइब्रेशनल लेवल से मैच कर रहा है, टी वन एस वन के वाइब्रेशनल लेवल से वो मैच कर रहा है। तो वहां पे अगर वो डी एक्साइट करते करते मतलब वाइब्रेशनली रिलैक्सेशन के थ्रू, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी ग्रेजुअली लूज करेगा इन द एक्साइटेड स्टेट, vibrationally less and less, and it is coming down this way, and once it reaches any of them जहाँ पे ये इस तरह का मैचिंग हो जाए तो T1 में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कम हो ज़्यादा हो, कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ होगा। सो दैट इज व्हाट वी इंडिकेट। सो ज़ेबुलॉन्स्की डायग्राम को आप इस तरह से समझने की कोशिश, द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द ज़ेबुलॉन्स्की डायग्राम। ठीक है, कि यहाँ से आया, अब मैं इसमें सारी प्रोसेस को दिखाता हूँ, इंटरनल कन्वर्जन। अब इसमें सेकेंड लेवल का और भी चीज़ें आती है, जब आपको इंटरनल कन्वर्जन और प्रोसेस दिखाना होता है तो एक्साइटेशन यू शो, कि एक और लेवल यहाँ पे है S2, तब आप उसको दिखाते हैं कि इसका जो टॉप नीचे वाला वाइब्रेशनल लेवल है वो S1 के वाइब्रेशनल लेवल से ओवरलैप हो रहा है। उस केस में दैट S2 से S1 विदाउट एमिटिंग लाइट और थ्रू वाइब्रेशनल रिलैक्स करते करते इधर जा रहा है, तो दैट इज इंटरनल, नहीं नहीं इंटर सिस्टम प्रोसेस, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं वो वाला इंटर सिस्टम का नहीं, क्रॉसिंग नहीं, वो आपको इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। S2 to S1 ये वाला, ये जो है S2 to S1 आ गया। हाँ, तो इसमें भी अगर हम पोटेंशियल वेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो इसमें भी आप उसमें बनाया नहीं गया है, लेकिन S2 का एक बनेगा पोटेंशियल वेव जो कि उसके नीचे वाला पोर्शन इसके वाइब्रेशनल लेवल के साथ, जैसे हमने S1 और T1 को दिखाया, जस्ट वैसा ही सोचिए कि S2 और S1 के बीच में क्या हम दिखा सकते हैं, हो जाएगा। देन इट विल बी लाइक दिस, नहीं तो मैं बाद में कभी शो करूंगा, आपको दिखाऊंगा वैसा। तो इस प्रोसेस को इंटरनल कन्वर्जन कहा जाता है। और इस तरह का S1 से S0 के बीच में भी कई बार हो सकता है कि इसका जो टॉप वाइब्रेशनल लेवल है वो S1 से कहीं तो नहीं कोइंसाइड कर रहा है, तो ये भी इंटरनल कन्वर्जन, ये जो यहाँ पे दिखाया गया। सो ये जो कलर कोडिंग किया गया है ना इंटरनल कन्वर्जन का, ये ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब जो येलो कलर्स में जितने दिखाए गए सब वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन है, कि ऊपर हायर वाइब्रेशनल लेवल विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। और जब दो वाइब्रेशनल, उसका टॉप उसका बॉटम वाला वाइब्रेशनल लेवल इसके ऊपर वाले वाइब्रेशनल लेवल से ओवरलैप है, वो इंटरनल कन्वर्जन है, जब ऐसे कर रहे हैं। और जब सेम स्पिन स्टेट में S2 S1 स्पिन स्टेट सेम है, ठीक है ना, सिंगलेट का सिंगलेट ही रहा, दैट इज इंटरनल कन्वर्जन। या S1 to S0 हुआ, ये भी इंटरनल कन्वर्जन का एग्जांपल। लेकिन S1 to T1 जब होगा वो इंटर सिस्टम प्रोसेस, सिस्टम अब चेंज हो, स्पिन सिस्टम बदल गया, सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहे हैं। ओके, सो दैट इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाएगा ये वाला। इंटरनल कन्वर्जन अक्सर कंफ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और हाँ, सो ये सारी चीज़ें, सो देखिए इंटरनल कन्वर्जन में अब आप
ध्यान से जब पढ़ेंगे और उस पिक्चर से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा। नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, ऑफ कोर्स वो वाइब्रेशन से तो रेडिएशन तो कुछ निकला कहीं नहीं जा रहा, इट इज जस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, थोड़ा सा सराउंडिंग्स में हीट होगा और वो एनर्जी लूज करते हुए नीचे जाएगा। एंड एक्साइटेड स्टेट कपल्स टू अपर वाइब्रेशन लेवल लोअर, वही उसका नीचे वाला वाइब्रेशन, एक्साइटेड स्टेट का S2 का वाइब्रेशनल लेवल नीचे वाला इस करस्पॉन्ड कर रहा है ऊपर वाले वाइब्रेशनल लेवल जो S1 का था। ठीक है ना, वही पिक्चर वहां से देखिए, कोरिलेट कीजिए तो इस ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, इसका जो वाइब्रेशनल लेवल है यहाँ पे लोअर वाला, दैट इज इट इज समहाउ corresponding to, it is overlapping with the top vibrational level of the high this S1 state. So अब आप इस वर्ड को जोड़िए जो मैंने पहले दिखाया आपको, और अब आप इसको कनेक्ट कीजिए तो यू आर थिंक पिक्चर इज क्वाइट क्लियर। ठीक है, ऐसा होता है जब आप क्लास में एक बार सुनते हैं आपके दिमाग में 50% ही जाता होगा, लेकिन उसको 2 बार 3 बार, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ रिपीट करके कि आपको थोड़ा उस समय 50 गया और थोड़ा और जाके 75 हो जाएगा, वही चीज़ बस आप समझना। ठीक है ना, तो इसको आप कनेक्ट कीजिए, जो यहाँ पे लिखा है उसको वही वही सब चीज़ें जो पिक्चर से वहाँ पे दिखाया गया है वही चीज़, द सेम थिंग इज बीइंग कन्वेड इन वर्ड्स। ओके, एंड या सो उसके बाद वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, इंटरनल कन्वर्जन, दोनों प्रोसेस वो सब आपको दिखाया। और जब नीचे पहुंच गया लोएस्ट लोअर मोस्ट वाइब्रेशनल लेवल पे पहुंचने के बाद ऐसा ऑप्शन है, आइदर इट कैन एमिट लाइट कम बैक टू एस नॉट, दैट इज फ्लोरेसेंस। वही हम उसको अगर फ्लोरेसेंस इज अ नाउन, फ्लोरेस जब यूज करते हैं तो इट हैज ऑप्शन टू फ्लोरेस और इट हैज ऑप्शन टू undergo fluorescence process. So fluorescence emission of light through S1 to S0। ठीक है, या फिर रेडिएशनल रेडिएशन लेस डीएक्टिव, मतलब बिना रेडिएशन लाइट एमिट किए कोलाइड करके इधर उधर मॉलिक्यूल से या इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू वो डीएक्टिवेट। सो ये डीएक्टिवेशन पाथवे मोस्ट डोमिनेंट पाथवे है इसको लेने की, और इसीलिए आपको फ्लोरेसेंस नहीं दिखता है। आइडियली अगर अगर ये पाथवे नहीं होता सोचिए तो ज़्यादा चांस था कि वो सब कुछ फ्लोरेसेंट होता, everything could have been fluorescent if radiation deactivation would not be there। ठीक है ना, मतलब 3 ऑप्शन है, जितना ऑप्शन उसको कम होता जाएगा फ्लोरेसेंस का चांस बढ़ जाएगा। तो जब भी हमें स्ट्रेटजी डिफाइन करनी होती है कि अगर हम कुछ सिंथेसाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हम इसी तरह से सोचते हैं कि कैसे उसका रेडिएशन जो डीएक्टिवेशन हो रहा है उसको हम कम करें पाथवे से। तो जैसे मॉलिक्यूल सॉल्यूशन फेज में ज़्यादा मूव करता है, अगर आप उसको सॉलिड सपोर्ट पे रख दें मूव नहीं कर पाएगा। सो देयर माइट बी चांसेस सम फ्लोरेसेंट, कोई चीज़ फ्लोरेसेंट नहीं है, फ्लोरेसेंट अगर उसमें लाना है तो कई बार इस तरह से हम लोग करते हैं और होता भी है कई बार सक्सेस सॉल्वेंट फेज में। समटाइम्स इफ यू आप टेम्परेचर कम कर दें, रूम टेम्परेचर से 10 डिग्री से 5 डिग्री ऐसे अगर घटा दें, तब भी आप देखेंगे कि फ्लोरेसेंस बढ़ने लगता है कई बार, एमिशन ऑफ लाइट, यू सी द ग्लो इज बिकम्स ब्राइटर। तो वैसा क्यों? क्योंकि रोटेशन जो टकरा रहा था मॉलिक्यूल से, कॉलिजनल डीएक्टिवेशन जो हो रहा था वो कम हो गया। सो ये जो एक एक लाइन में लिखा हुआ है इस पे आप सोचेंगे, गौर से सोचेंगे, बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। So all these things, if we can, so collisional deactivation is a very common phenomenon in a solution. In chemistry, we work with solutions, mostly the liquid. So there is a collisional deactivation because the molecules, solute molecules collide amongst themselves. They also collide with the solvent molecules. In all these collisions, energy will be lost. ठीक है, तो ये हमेशा होता है, सॉलिड वाले में भी कुछ कुछ होगा धीरे धीरे। सो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि यू हैव टू, देयर इज चेंज ऑफ द स्पिन स्टेट, you are violating the principle of spin conservation. So it so but it happens in some cases, and that is, we call it phosphorescence, emission of photons when T12 is not.
फ्लोरेसेंस करना चाहे सर तो क्या कंडीशन में आ सकता है सॉल्यूशन? तो आपको दैट इज वन थिंग। कंडीशन था 5 to 6 किलो कैलोरीज, वो डिफरेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिंगलेट और ट्रिपलेट का। सिंगलेट और ट्रिपलेट का, हाँ 5 to 6 किलो कैलोरीज अगर है तो होता है फॉस्फोरस में। हाँ, डिफरेंस ट्रिपलेट स्टेट का डिफरेंस जो एनर्जी है S1 to T1 का वो कम होना चाहिए, नंबर वन। ओवरलैपिंग स्टेट अगर ओवरलैपिंग है तो बहुत अच्छा है, ओवरलैपिंग नहीं है या कम है तो उस पर डिपेंड करेगा। फिर दूसरा है कि समथिंग टू सपोर्ट दैट मेकअप फॉर द लॉस ऑफ जो स्पिन कंजर्व नहीं हो रहा है ना, तो वो कहाँ कहीं से तो कंपेंसेट करना पड़ेगा। उसके बारे में अगर आप सोचते हैं तो वो सब चीज़ें होती हैं। सो यूजुअली विल टॉक अबाउट दैट लेटर, उस पर हम आएंगे, क्योंकि यस दैट इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स थिंग फॉस्फोरेसेंस। लेकिन हाँ, इन प्रिंसिपल इफ यू आर आस्क्ड अबाउट फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस, आई थिंक अब आपको इसमें से आप इजीली दिखा सकते हैं। सो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ट्रिपलेट, this what we have already shown. सो ये सब आई थिंक वी आर गेटिंग रिपीटेटिव। बहुत सारे पिक्चर्स मैंने डाले थे, अलग अलग सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स, just like S1 to S0 transitions. So this is fluorescence which is shown through the energy level diagram, sorry potential वेल डायग्राम। हाँ, एनर्जी लेवल डायग्राम ही है लेकिन पोटेंशियल वेल के फॉर्म में। देन सर माइक एडजस्ट कर लीजिए सर, आवाज साउंड नहीं नहीं आ आ रही रहा है? सर। नहीं आ रहा है? माइक एडजस्ट कर लीजिए सर, आपका शायद वीडियो भी ऑन है सर, उसे भी बंद कर दीजिए ओके सर। ओके, हाँ वो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन इसमें ना फिर चला जाएगा, रिकॉर्डिंग चला जाएगा मेरा। अभी आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो? हाँ सर आ रही है सर, वीडियो आप बंद कर दीजिए सर, आपका शायद वीडियो भी ऑन है। हाँ हाँ, वो रह गया था, उसमें ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ, एक मिनट, इसमें एक प्रॉब्लम हो गई। अच्छा ठीक है, सो जस्ट अ मोमेंट, वी कैन डू दिस। हाँ हाँ, सॉरी। ओके